Good morning, class 8. We have completed unit number 5 and we have finished up to page number 114. Now it is your duty to complete your work, written work, in books as well as in your notebooks. So few students have sent me the notebooks and only Tripti has get her notebook checked. Sarika has sent and few others. Rest all of the class, neither from A and B. Nobody has sent me the notebooks. Whether you come to school and get it checked by me offline or you complete your written work, bache, your final exams are coming and after few days there may be some formative tests also of 25 marks. So for that you need to complete your syllabus so that you can revise that. So now we are going to start with the unit number 6, that is environment. So as we all know, we are well aware of our environment and what is environment? You know that environment is our surroundings, the atmosphere. So humans have used the earth's environment, including its resources, with little knowledge and understanding of the consequences. Means we humans have used the earth's environment. हमने अर्थ की पूरी environment को यूज़ किया है, ठीक है, करते आ रहे हैं और कर रहे हैं. Including its resources. Resources क्या होते हैं बच्चे? Whatever we get from the nature, like water, then coal, air, all these things we get from minerals, the things we get from the nature, all the natural resources. So all these are natural resources. We are using it. We have used the earth's environment, including its resources, with little knowledge and understanding of the consequences. Means we have never tried to understand the knowledge, understand its knowledge, or understand the consequences. Consequences are the outcomes or the results. Without understanding the earth's environment, we have used it. We have used its resources also, despite of little knowledge about it, and without thinking about its consequences means results. Now the impact is showing and irreversible changes in the global environment have been set into motion. And now slowly and steadily we can see that the impact of using the earth's environment, we have taken it for granted and we are using it without thinking. In the other words, we can say that we are wasting it. We are not using it, we are just wasting it, because the things which we get from nature and which we get free of cost, we don't value those things. This is human nature. जो हमें चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं हम उनकी कभी परवाह नहीं करते, उनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. और यही काम हम अपनी नेचर के साथ और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं. हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, वेदर इट्स लैंड, वाटर और एयर. वी आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. वी आर नॉट गिविंग अ थॉट फॉर इट दैट हाउ वी कैन स्टॉप ऑल दिस. और अब जो है इम्पैक्ट देखने लग गया है. एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. इरिवर्सिबल मीन्स जो कभी अब चेंज नहीं हो सकती, वो आपको देखने को मिल रही हैं. ग्लोबल एनवायरनमेंट हैव बीन सेट इनटू मोशन. मीन्स ग्लोबल वार्मिंग, आजकल बहुत ये टर्म यूज़ हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जो हमारा नेचुरल एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है जो, वो गर्म होता जा रहा है. पोल्यूशन की वजह से कह लीजिए और फैक्टर्स बोल लीजिए कि वो पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा अर्थ है, वो ग्लोबली वार्म होता जा रहा है. और किसी दिन वो इतना वार्म हो जाएगा, इतना हॉट हो जाएगा कि वो एक्सप्लोड होने की कगार पे आ जाएगा. So as our human population increases, there is an accelerated rate of environmental deterioration. Individuals as well as the governments have roles to play in choosing whether to do nothing or to act positively towards a sustainable future for ourselves and other species. So as we all know that there are a lot of problems
One problem is human population. It is increasing day by day. We don't even think of that how much our resources are getting waste, and we are not going to leave anything for our children and the other coming generations, because as we are wasting it. So population भी increase हो रही है. Then there is an accelerated rate of environmental deterioration. Means environment भी जो है हमारी deteriorate हो रही है. Deteriorate means ख़राब होती जा रही है उसकी condition. Individual as well as governments have roles to play, और इसमें हमारा भी और गवर्नमेंट का दोनों का मीन्स रोल होता है. बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारा और गवर्नमेंट का इन चूजिंग वेदर टू डू नथिंग और टू एक्ट पॉजिटिवली. कि जितना गवर्नमेंट का राइट है उतना ही हमारा भी राइट बनता है. इंडिविजुअली भी हमारे कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, मॉरल ड्यूटीज़, कि हम अपनी इन्वायरमेंट के लिए, अपनी अर्थ को सेव करने के लिए कुछ करें या ना करें. टू डू नथिंग और टू एक्ट पॉजिटिवली टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर. मीन्स हम अपने लिए एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करें जो कि सस्टेनेबल हो फॉर आवर सेल्स एंड द अदर स्पीशीज़, और दूसरी स्पीशीज़ भी हमारी जैसे एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, और द लिविंग बींग्स. So in this unit number 6, that is environment, we are going to read we have 4 sections. First is environmental degradation. Second is Mansarovar, Kailash, take a walk on the wild side, and the encroachment. So we are going to read these 4 and we'll find out what role you and your friends can play in protecting the environment and ensuring that animals and plants continue to exist. So this unit is regarding the environment, so we will choose some writing section related to the environment, pollution, or wildlife, saying anything related to plants, flowers, or environment. Okay, so now we move to section number 1, that is take a walk on the wild side. All you nature lovers out there, here's your chance to commune with nature at the Corbett National Park, that is called as CNP. So here in this lesson we are going to read about CNP, that is the Corbett National Park. In this lesson they will tell you everything about that, how to reach there, and what are the attractions there. So now we are going to read that all the nature lovers out there, here is a chance to commune with nature. Commune means a group of people living together with nature. There are so many creatures, they are living together with the nature. So come and have a chance to commune with the nature. Means nature के साथ आओ और थोड़ा सा नेचर के साथ घुलने मिलने की कोशिश करो. कहाँ पे? At CNP, Corbett National Park. Now they are telling you that where it is located. It is located about 51 kilometers away from Ramnagar, in the valley of Ramganga river, close to the foothills of Himalayas. So it is located 51 kilometers away from Ramnagar. Ramnagar से 51 kilometers away है. कहाँ पे है? In the valley of Ramganga river. रामगंगा रिवर की वैली क्या होता है? वैली वो पार्ट होता है बच्चे जो 2 हिल्स के बीच का होता है. दैट इज कॉल्ड द वैली. लाइक वैली इज लाइक दिस इज 2 hills and this part is called the valley. So it is located in the valley of Ramganga river, close to the foothills of Himalayas. तो ये हिमालयस के बिल्कुल फुट हिल्स पे, मीन्स यहाँ नीचे लोकेटेड है. देयर आर 2 ways टू गेट देयर. आप 2 ways में वहाँ पहुँच सकते हैं, बाय ट्रेन एंड कवरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी बाय आइदर अ बस और अ जीप. That will take you another 1 hour. Now there are 2 ways to get there. One by the train and covering the rest of the journey by bus or a jeep. That will take another hour.
विच यू कैन हायर, आप हायर कर सकते हैं कार या बस या जीप, वहाँ से आपको 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा। अनदर ऑप्शन क्या है दैट यू गो टू रामनगर, आप रामनगर चले जाइए एंड वहाँ से आप एक जीप हायर कर लीजिए फॉर एंटायर डे। So it will cost you around 1200 a day. So if you hire a jeep for one day, it will cost you around 1200 a day, and this will include all the journey from the Ramnagar to Corbett. So it will include journey from Ramnagar to Corbett. They will take you there and back to Ramnagar, as well as one jungle safari also. So 1200 includes that jeep will take you from Ramnagar and will take you to Corbett, and they will means take you back to रामनगर एज वेल एज इट विल इंक्लूड दी जंगल सफारी। तो 1200 में ये सब आता है, आपको लेके जाएगी वहाँ से कॉर्बेट तक, कॉर्बेट से फिर आपको वापस भी छोड़ के जाएगी रामनगर तक, और उसमें एक आपकी जंगल सफारी भी इंक्लूडेड है। सो इट्स नॉट अ बैड डील, मीन्स इफ़ यू हायर अ टैक्सी फॉर 1200 अ डे जीप, so you can enjoy. To begin with, collect a permit and a pass from Corbett Tiger Authority CTR. आपको क्या करना है, परमिट कलेक्ट करना है, कहाँ से, CTR मीन्स कॉर्बेट टाइगर अथॉरिटीज से, बिटवीन 8:30 to 4 PM। आपने सुबह 8:30 से 4 PM के बीच में CTR मीन्स कॉर्बेट टाइगर अथॉरिटीज से परमिट लेना है। देयर इज़ अ स्मॉल मेमोरेबल शॉप एट द एंट्रेंस, तो वहाँ पे एंट्रेंस के पास ही एक शॉप है बच्चे। उसको मेमोरेबल इसलिए कह रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी शॉप पे जो कि आपको हमेशा याद रहेंगी, ठीक है ना। तो एंट्रेंस पे ही एक ऐसी शॉप ये लोग खोल के रखते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होता है। तो ये उससे रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड या उस वाइल्ड पार्क से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें रखते हैं, इवेंट्स रखते हैं, ताकि अगर आप यहाँ से लेकर जाते हैं उनको तो आप हमेशा याद रखेंगे कि यस हम यहाँ पे होकर आए थे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल मेमोरेबल शॉप। मेमोरेबल मीन्स मेमोरीज, जो याद रहती हैं। एंट्रेंस पे ही है एंड यू विल गेट एवरीथिंग यू नीड टू प्ले। आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा जो आपको खेलने के लिए चाहिए, कॉर्बेट, हंटर हैट्स, टी-शर्ट्स विद पग मार्क्स एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी जिससे कि आपको याद आता रहेगा कि हम CNP में होके आए थे। गॉट इट? मेमोरेबल शॉप, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मेमोरेबल शॉप। So now we come to the next paragraph. Next, check the availability of accommodation. Then if you are going there, so you need to stay there also. So for that you have to check the availability. आप कहाँ पे accommodate हो सकते हैं? In any one of the forest guest houses. वहाँ पे बहुत सारे forest guest house बने रहते हैं, जहाँ पे भी ऐसे नेशनल पार्क्स में जाते हैं आप, वहाँ पे गवर्नमेंट के भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। तो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर बजट। सो 1 room कॉस्ट ₹600 अप्रॉक्सीमेटली एंड बोर्ड द CTR। तो वहाँ पे वो आपको पूरा ये भी बता रहे हैं दैट 1 room आपको वहाँ पे ₹600 अप्रॉक्सीमेटली पे मिलेगा एंड बोर्ड द CTR, बट दैट टेक्स यू ऑन अ टूर ऑफ द पार्क बिटवीन 9 to 5 PM। तो वहाँ से आप CTR मीन्स ये कॉर्बेट टाइगर अथॉरिटीज़ बोर्ड कर लीजिए, जो आपको टूर पे ले जाएगी पार्क में बिटवीन 9 to 5। सो फॉर ऑल दोज लकी मैन, डॉर्मेट्रीज आर अवेलेबल एट ₹80 per night। एंड वहाँ पे डॉर्मेट्रीज़ भी हैं बच्चे। डॉर्मेट्रीज़ क्या होती हैं? डॉर्मेट्रीज़ आर बिग हॉल्स, ओके, बड़े बड़े रूम्स हैं वहाँ पे। जो लोग ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये उनके लिए है। जो थोड़े मिडिल क्लास के हैं, दे कांट अफोर्ड द सिंगल रूम्स और सूट्स एंड ऑल दैट, सो
There are dormitories are also available, means very big halls where they have several beds and many people can lie there. So dormitories are available at ₹80 per night. क्योंकि एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें बहुत सारे बेड लगे होते हैं, तो जो रूम्स नहीं ऐसे अफोर्ड कर सकते वो ऐसी डॉर्मेट्रीज़ में रात भर लेट सकते हैं, और वो पर नाइट उनका रेंट बहुत ही रीज़नेबल है, ₹80 पर बेड, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉल है और उसमें बहुत सारे बेड लगे होते हैं, इसीलिए उनको डॉर्मेट्री कहा जाता है. सो दिस इज़ हाउ एवर नॉट रिकमेंडेड फॉर द लेडीज़. तो इट इज़ गुड इफ़ यू आर सिंगल. आप अगर अकेले मेल हैं तो ये ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे और तरह तरह के लोग होते हैं. सो इट्स नॉट अ वेरी गुड फॉर लेडीज़. अगर आपके साथ लेडीज़ हैं सो देन यू हैव टू टेक अ प्राइवेट रूम. सो फूड इज़ अवेलेबल एट द रेस्ट हाउस कैंटीन. आपको फूड भी वहाँ मिल जाएगा. रेस्ट हाउस की कैंटीन बनी हुई है फॉर एन एक्स्ट्रा चार्ज, बट फॉर दैट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा. द मोमेंट यू एंटर CNP यू आर हैंडेड अ गनी बैग. और जैसे ही आप CNP एंटर करते हैं मीन्स आप उसके क्या बोलते हैं, कैंपस में एंटर करते हैं. विसिनिटी जैसे बोलते हैं हम, द एरिया कवर्ड एरिया में CNP, क्योंकि वो पूरा फेंस्ड होता है बच्चे प्रॉपरली. इफ़ यू हैव एवर बीन टू एनी नेशनल पार्क, सो इट इज़ फेंस्ड. पूरा उसमें फेंस लगी रहती है, पूरा जितना बड़ा भी वो नेशनल पार्क होता है, कि जो अंदर के जो एनिमल्स हैं दे जस्ट कांट मूव आउट ऑफ दैट एरिया. तो वो वहीं पे रहते हैं उसी एरिया में. नेशनल पार्क में खुला बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको वो फेंसिंग करके रखते हैं प्रॉपरली, दैट सो दैट नो वाइल्ड एनिमल कैन go out and pose a danger for the villagers or the other town people. So you are handed a gunny bag. आपको gunny bag दे देते हैं, that if you are having eating something, so you put all the wrappers or the peels in the gunny bag. You are not allowed to throw anything outside. And a long list of rules. आपको एक पूरा पेज मिल जाता है जिसमें बहुत लंबी लिस्ट होती है जो आपने ओबे करने हैं रूल्स. So no stepping off the jeep while on safari. So you're not allowed to step off the jeep. आप नीचे नहीं उतर सकते जब तक आप सफारी में हैं, ठीक है. Then no smoking in the forest ground. Smoking allowed नहीं है. No bonfires, no noise. There are just some of many no-nos. So there are very strict rules. I have been to 3 national parks. I have visited Kanha National Park, that is in Madhya Pradesh, and one at Ranthambore, that is in Jaipur, and one at Panna Tiger Reserve. So I have been to 3 wild national parks, and it was an amazing experience. I'm telling you my personal experience. So it was a great tour. बहुत मज़ा आया हमें. अर्ली मॉर्निंग ये लोग लेकर जाते हैं, अराउंड 5 सफारी हमने की थी. पन्ना टाइगर रिजर्व थी, वहाँ पे खूब सारे टाइगर्स होते हैं, तो हमने वहाँ पे पहले देखा था सर्वे करके कि कहाँ पे ज़्यादा उम्मीद है टाइगर देखने की. तो दिस वाज द थर्ड टाइम दैट आई वेंट टू पन्ना टाइगर रिजर्व. फर्स्ट वी in 2008 we went to Kanha National Park, that is in Madhya Pradesh. We couldn't see, we were not lucky to see the tiger there. Then in 2015 we visited Ranthambore National Park, that is near Jaipur. So there also we couldn't see the tiger. So this time 2 years back we have visited the Panna Tiger Reserve, that is also in Madhya Pradesh. So luckily when we were coming back during safari, so we were quite disappointed that this time also we couldn't see the tiger. So but as we were coming back in our jeep, so luckily we saw the
टाइग्रेस, वो बिल्कुल हमारे जीप के सामने से निकल के गई एंड वी सॉ हर फ्रॉम अ वेरी नियर, मीन्स यू कैन से दैट बिल्कुल ही जीप के आगे से वो निकल रही थी एंड हमने अपनी जीप रोक ली और गाइड हमें बता रहा था सब उसके बारे में, टाइग्रेस के बारे में, कि यहाँ पे ये टाइग्रेस, ये दूसरी टाइग्रेस है, एक और भी है, उसने इतने बच्चे दिए एंड ऑल दैट। तो बहुत अच्छा लगा टाइग्रेस को देख के। हमें लगा कि यस, दिस टाइम हमने जो पैसे खर्च किए हैं तो वो हमारे मीन्स पूरे हो गए। इस बार वो नहीं लगा कि हाँ वेस्ट गए, और हमने बहुत अच्छे से उसको बिल्कुल पास से टाइग्रेस को देखा। वो हमारी जीप से सड़क क्रॉस करके सामने से निकली। इट वॉज सच अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। आई कुड इवन रिमेंबर नाउ कि मैंने बिल्कुल पास से टाइगर को देखा है, बिल्कुल पास से। सो आई विश ऑल ऑफ यू शुड विजिट द वाइल्ड पार्क्स वंस। इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट। नेचर होती है वाइल्ड पार्क्स में, आप एनिमल्स देखने को मिलते हैं आपको, तो यू विल रियली इन्जॉय इट अलॉट। आपको बहुत अच्छा लगेगा जाके। तो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि इस बार आपको किसी नेशनल पार्क में ही लेके जाएंगे। तो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू स्टेप ऑफ द जीप वाइल ऑन सफारी। स्मोकिंग नहीं कर सकते। नो बॉन फायर्स, मीन्स बॉन फायर्स होते हैं जब आप वो लकड़ियाँ लगा के फायर जलाते हैं और आसपास बैठते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड बॉन फायर। ना आपने शोर मचाना है वहाँ पे। और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं लिस्ट में। द जर्नल आइडिया इज़ दैट इट इज़ द होम ऑफ एनिमल्स एंड एज अ गेस्ट no one should see to it that they are not inconvenienced in any way. So रूल्स वहाँ पे इसलिए होते हैं क्योंकि हम वहाँ पे गेस्ट होते हैं। वाइल्ड पार्क जो है वो एक तरह से एनिमल्स का होम है, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे क्या हुए, वी आर गेस्ट्स देयर। तो गेस्ट्स को हमेशा अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। तो हमें बहुत रूल्स के साथ ओबे करके हमें एंटर करने को दिया जाता है एंड वी आर मेड श्योर दैट वी डोंट डिस्टर्ब दैम। उनकी कन्वीनियंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वी आर गेस्ट्स देयर बिकॉज वाइल्ड पार्क इज़ द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सो कॉर्बेट स्पेशल इज़ एक्चुअली द एलिफेंट सफारी। कॉर्बेट में वैसी एलिफेंट सफारी होती है, एलिफेंट के ऊपर बैठा के आपको सफारी की जाती है, बट रिमेंबर टू बुक इन एडवांस। बट ये जो बुकिंग है एलिफेंट सफारी आपको एडवांस में करवानी पड़ती है, एट देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ एलिफेंट्स। आजकल कम है। तो एलिफेंट सफारी इज़ लेजरली वे। ऑब्वियसली यू विल फील वेरी गुड when you're sitting on an elephant and you are just strolling in the jungle. So it's a very mesmerizing experience. Safari costs about ₹200 per person. तो ये जो सफारी है 200 per person means if you are 4 so you will have to pay 4 into 2 800, right? So you can alternately hire a jeep for ₹600 or you can hire a jeep that will cost you around ₹600. Other than tiger, Corbett also houses variety of deer and its bird watcher ultimate delight. Means tigers तो वहाँ पे main attraction है, but उसके अलावा what you can see there, varieties of deer and is a bird watchers ultimate delight. Means वहाँ पे बहुत सारे लोग bird watching के लिए भी जाते हैं. So I hope you enjoyed this lesson. I just felt that I have gone to a wild park, क्योंकि नेशनल पार्क में 3 बार होके आ चुकी हूँ। तो मैं जैसे जैसे आई वॉज रीडिंग दिस लेसन आई वॉज जस्ट फीलिंग एज इफ आई एम गोइंग बैक टू द आई एम देयर इन द नेशनल पार्क ओनली. It is just a very different type of experience and I really loved visiting the national parks. It's really very good experience. So I'll wish that all of you should once visit any of the national park. You will definitely like it.